Hello student, welcome to the English class. Now let us start second part of second lesson which is the thief story from footprints without feet. हम इस स्टेंजी पे थे. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the knots. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sit in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out on the room. When I was on the road, I began to run. I had the knots at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. अनिल सोया हुआ था. चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी. स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया. मैं सोच रहा था मतलब कि मुझे चोरी करनी चाहिए, कैसे करूं, विचार कर रहा था. यदि मैं पैसे लेता हूं तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता था. उसने विचार करा था कि अगर मैं अभी इन पैसों को चुरा लूँ तो मैं एक गाड़ी जाती है उसमें मैं जा सकता हूँ, यहाँ से भाग सकता हूँ. कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ गया. अनिल शांतिपूर्वक ढंग से सो रहा था. उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था, जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे. यद्यपि मेरे निशान जो थे ज़्यादातर घाव के थे. मीन्स देखो, इसको मुझे तो टेंशन भी थी क्योंकि मैं इस टेंशन में था चुराऊं या ना चुराऊं. अगर मैं चुरा लेता हूं तो मैं भाग भी सकता हूं. तो कई विचार थे, बट मेरे चेहरे पर कुछ निशान जो थे मेरे घाव के भी थे. मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया. मीन्स मैंने हाथ से उसे तलाशने शुरू किए, पैसे किधर हैं. जब मुझे वे मिले, मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल लिया. अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट ली. मैं भौचक्का रह गया और मैं जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया. जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. मैंने ये नोट अपनी कमर पर पायजामे के धागे से बांध लिए. मैं नोटों को कहाँ डालूंगा, तो पजामा था, कोई पॉकेट नहीं थी, तो मैंने स्ट्रिंग से उसको बांध लिया था. मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना कि कितने नोट हैं. 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे. मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था. मैंने ऐसा सोचा. When I reached the station, I did not stop at the ticket office but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका. क्यों नहीं रुका? मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. अभी तो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा. लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी. गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी और मैं कूद कर किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया. किस कारण से मुझे नहीं पता. मैं ऐसा क्यों नहीं चढ़ पाया. मेरे सामने ट्रेन थी, वो रुक भी गई थी और मैं चढ़ भी सकता था, बट मुझे पता ही नहीं मैं क्यों नहीं चढ़ा, किस वजह से मैं हिचकिचा गया और मैंने भागने का मौका खो दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious.
by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. जब गाड़ी जा चुकी थी, मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। मैं कोई दोस्त नहीं था मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं दोस्त क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, मुसीबत ही खड़ी करते हैं। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद की अपेक्षा समस्या अधिक देते हैं। वो हमारे सीक्रेट्स को छुपा नहीं पाते, किसी न किसी को बता देते हैं। इसलिए मैं दोस्त नहीं रखता। और मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था कि आज मैं क्यों रुका हुआ हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह जानता था, वही था जिसे मैं लूट चुका था। सिर्फ एक वही था नील जिसको मैं जानता था, उसे मैंने रॉब कर लिया था। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यालय में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था। मीन्स जैसे मैं चोरियाँ करता था तो मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने की आदत हो गई थी। मैं जानता था जब उनका सामान खो चुका होता था तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करते थे। वो बताता है कि लालची व्यक्ति भय दिखाता था और अमीर व्यक्ति गुस्सा और गरीब व्यक्ति स्वीकार कर लेता था कि उसकी चोरी हो गई है। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा उदासी की एक झलक पर भर दिखलाएगा। लेकिन वो उदासी किसके लिए होगी? पैसे के खो जाने पर नहीं होगी, अपितु विश्वास के खो जाने पर वो उसकी उदासी होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। मेरी कमीज और पायजामा मेरे त्वचा से चिपक गए। जब गीला हो जाता है कपड़ा तो वो हमारी स्किन से चिपक जाता है और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के जो थी थपेड़े मारने लगी। मीन्स ठंडी हवा जो थी चलने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। मुझे नोटों की चिंता हुई, वे बारिश में गीले हो चुके थे। अनिल के पैसे सुबह वह शायद हो 2 और 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, वह सोच रहा है अब। लेकिन अब यह सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता। अनिल ऐसा जो है सोच रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few 100 rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something as I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly,
then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the knots. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the knots. अनिल सोचता है हरि सिंह सोचता है, मैं चोरी करने की उत्सुकता में उनके बारे में भूल गया था। मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन मेरे लिए कुछ 100 रुपये से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। मीन्स अगर मैं वहीं पर रुका रहता, चोरी ना करता, तो वो मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखा सकता था। और हो सकता है अगर इतना सब जान जाता तो मैं आज चोरी कर रहा हूँ इनसे ज़्यादा कमा पाता। चोरी करना एक साधारण बात है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही साधारण बात है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज़्ज़तदार आदमी बनना कुछ और ही बात थी। यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा, मीन्स वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, मैं शायद कोई बड़ा आदमी बन जाऊँ। मैं घबराया हुआ वापस शीघ्र कमरे में गया, क्योंकि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है बजाय इसे बिना पता लगे लौटाने की। मीन्स किसी चीज़ को चुरा के एकदम मैं भाग गया, लेकिन जब उसे वापस उसी स्थान पर रखना ये और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं बादल चांदनी के दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल अब भी सोया हुआ था। मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला। मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। मैं 1 मिनट तक नहीं हिला। तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को ढूंढा और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the notes, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी का पता चल गया। मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे, उसने बताया। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन अदा किया जाएगा, अनिल ने हरि सिंह से कहा। मेरा हौसला बढ़ गया, लेकिन जब मैंने नोट लिया, मीन्स जब हरि सिंह ने उस नोट को पकड़ा, तो मैंने देखा यह रात की वर्षा के कारण अभी तक गीला था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। अनिल ने हरि सिंह से कहा। वह सब जानता था, लेकिन न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी महसूस कराया। मैं अपने उसी मोहक अंदाज में अनिल पर मुस्कुरा रहा था और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई थी। मीन्स इससे हरि सिंह को पता चल गया था, क्योंकि नोट अभी भी गीले थे। बट अनिल ने हरि सिंह से कुछ भी नहीं कहा कि नोट गीले क्यों हैं। इसलिए हरि सिंह को पता लग गया था कि अनिल को इस चीज़ का आभास तो हो गया है कि मैंने चोरी करने की कोशिश की थी, बट मैं किसी वजह से कर नहीं पाया। इसलिए अनिल ने उसे एक रेगुलर सैलरी देने का सोचा और उसे पढ़ाने का सोचा। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन ये आज लेसन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको रफ नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके।